Hello students, welcome to Chanakya Academy's online classes. Okay, dear students, this is standard 9th class English medium, subject English, chapter number 2, the sound of music. Okay, in previous lecture we also learnt about part number 1, Evelyn Glennie, listen to sound without hearing it, and then we started part 2 of this story, part 2, the Shehnai of Bismillah Khan. ओके सो कहाँ तक हम थे तो आई थिंक पैराग्राफ नंबर 5 इट वाज कंप्लीटेड. ओके, व्हाट इज़ इन द पैराग्राफ 5 जल्दी से रिकैप कर लेते तो थोड़ा सा आइडिया आ जाए तो आगे पढ़ने में मज़ा आ जाएगा. द यंग बॉय took to music early in life. The young boy who Bismillah Khan. At the age of 3, when his mother took him to the maternal uncle's house in Banaras, and Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh, okay, to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Shehnai. Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly, he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. Next 6. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference. Okay, so जब वो 14 years के थे तब अपने अंकल जो अली बख्श जो थे उनको अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में उनके साथ जुड़ने लगे थे, काम करने लगे थे. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back. Okay, at the end of his recital, जैसे वो ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई उसमें उन्होंने अच्छा सा म्यूज़िक बजाया. Then उस्ताद फैयाज़ खान patted the young boy's back, तो उनकी पीठ थपथपाई उन्होंने and said, और क्या बोला था उस्ताद फैयाज़ खान ने? Work hard and you shall make it. तो बिस्मिल्लाह खान को उन्होंने बोला था वर्क हार्ड वर्क कर एंड यू शैल मेक इट, और तू ये हम करके ही रहेगा. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. और जैसे ही ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन लखनऊ में स्टार्ट हुआ था, ओपन हुआ था, कब? इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. और बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बहुत सा बिग ब्रेक मिलने वाला था, वहाँ से स्टार्टिंग होने वाली थी, कुछ नहीं. He soon became an often heard Shehnai player on radio. और वो जल्द ही ऐसे शहनाई प्लेयर बन गए थे रेडियो के लिए जो सबको सुनना पसंद था. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. Okay, when India gained independence, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला on 15th August 1947, उस दिन पर बिस्मिल्लाह खान तो became the first Indian, वो फर्स्ट इंडियन बने थे to greet the नेशन को ग्रीटिंग करने के लिए विद हिज शहनाई. तो उनकी शहनाई से उन्होंने फर्स्ट टाइम सबको ग्रीट किया था ऑन द उस दिन जब हमें आज़ादी मिली थी ऑन 15th August 1947. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. And he poured his heart. His heart is full of out of his राग काफ़ी. उन्होंने राग काफ़ी गाया कहाँ पे? फ्रॉम द रेड फोर्ट से. कब? ऑन द 15th August 1947 टू एन ऑडियंस विच इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर भी थे. कौन सा राग? राग काफ़ी गाया था. who later gave his famous Tryst with Destiny speech. और जब वहाँ से बाद में जैसे ही बिस्मिल्लाह खान की ये राग, ये उनकी जो शहनाई की जो ग्रीटिंग थी वो ख़त्म हुई, तब उसके बाद उनकी जो फेमस स्पीच जवाहरलाल नेहरू की थी, जो हमारी डेस्टिनी मीन्स कंट्री को एड्रेस करने वाली थी, वो उन्होंने दी थी.
Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. तो बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे रिमेंबर जो मेमोरेबल परफॉर्मेंस थी वो इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ में दी थी. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वॉज टू अफ़गानिस्तान, और उनकी फर्स्ट ट्रिप जो थी, फर्स्ट इंटरनेशनल जो काम था उनका, विच इज़ इन अफ़गानिस्तान. फर्स्ट जो काम था अफ़गानिस्तान में किया. वेयर किंग ज़ाहिर शाह, वहाँ पे उस टाइम पे कौन था कि किंग ज़ाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. Okay, जब वो वहाँ गए, शाह ने वॉज सो टेकन बाय द maestro that he gifted, और उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा भी की, बहुत सारे गिफ्ट भी दिए, यानी गिफ्टेड हिम. और किंग ने गिफ्ट किया था बिस्मिल्लाह खान को. क्या किया था? प्राइसलेस, जिसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते, पर्शियन कारपेट्स दिए थे उनको, एंड अदर सोनियर्स. सोनियर्स मीन्स थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ प्लेस, पर्सन और इवेंट, उसे बोला जाता है सोवरेन. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूजिक. नॉट ओनली द किंग ऑफ अफगानिस्तान, किंग ज़ाहिर शाह फैसिनेटेड, वो ओनली अट्रैक्टेड नहीं थे बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से, बट बहुत सारे ऐसे जो इनसे अट्रैक्ट थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी उससे बहुत इम्प्रेस थे. आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट नेम्ड अ फिल्म आफ्टर इंस्ट्रूमेंट कॉल गूंज उठी शहनाई. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट और वो भी इनसे इम्प्रेस थे. कब? जैसे उन्होंने सुना बिस्मिल्लाह खान को बजाते हुए फेस्टिवल्स में, द रीनेम्ड फिल्म, और उन्होंने फिल्म बनाई. उसके बाद उनके साथ इंस्ट्रूमेंट कॉल, जो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, उनको क्या नाम दिया था? गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वॉज अ हिट, वो फिल्म हिट रही. एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान की वन ऑफ द बेस्ट कंपोजिशन मानी जाती है. सम वर्ड्स लाइक चार्टबस्टर मीन्स रिकॉर्ड ब्रेकर, जो बहुत बड़ा रिकॉर्ड करने वाला. celluloid means old fashioned way of referring to films, and venture means project that often involves risk से भरा हुआ कोई प्रोजेक्ट, कोई काम. ओके, देन बिस्मिल्लाह खान की जो बेस्ट कंपोजिशन कौन सी थी? दिल का खिलौना है टूट गया. ये गीत जो फेमस हुआ था उनका, टर्नड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और वो पूरे कंट्री में एक चार्ट बस्टर मीन्स रिकॉर्ड ब्रेकर बन गया था, रिकॉर्ड बना लिया था उसने, बहुत लोगों ने सुना. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, एंड उनकी ये जो ह्यूज बिग सक्सेस थी कहाँ पे? सेल्यूलॉइड वर्ल्ड मीन्स जो ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग फिल्म्स रिलेटेड जो वर्ल्ड था वहाँ पे, मीन्स फिल्म इंडस्ट्री. बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू. ओके, बिस्मिल्लाह खान का जो वेंचर में जो प्रोजेक्ट था जिसकी जो फिल्म म्यूज़िक में था, जस्ट लिमिटेड हो गया टू मीन्स विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, वो फर्स्ट. एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर, और एक विक्रम श्रीनिवास करके जो डायरेक्टर थे, जो इनका जो कन्नड़ा प्रोजेक्ट था कन्नड़ लैंग्वेज में था, सनादी अपन्ना. ये दो जो फर्स्ट टाइम उनको काम मिला था. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. और वो always emphasis के साथ कहते थे, I just can't come to terms, मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता जो artificiality जहाँ हो एंड जहाँ glamour हो फिल्म वर्ल्ड का, वो मुझे नहीं चाहिए. Awards and recognition came thick and fast. Awards and recognition, name, fame, सब कुछ जल्दी मिला उनको. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. And Bismillah Khan became the first Indian person to be invited, जिनको invite किया गया था कहाँ पे? To perform at the, कहाँ परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने? prestigious, जो well rich लिंकन सेंटर हॉल. लिंकन सेंटर हॉल जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहाँ उनको इनविटेशन मिला था उनकी शहनाई बजाने के लिए. He also took part in the World Exposition in Montreal
in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. And he also took part, और उन्होंने पार्ट भी लिया था कहाँ पे, इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में, इन द कैनस फिल्म आर्ट फेस्टिवल, कहाँ पे, इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल था एंड ओसाका ट्रेड फेयर था वहाँ पे. सो वेल नॉन डीड ही बिकम इंटरनेशनली, तो धीरे धीरे वो इंटरनेशनली फेमस होते गए. दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, और तेहरान का जो ऑडिटोरियम था उनके नाम से उनको दिया गया, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. और तेहरान का जो ऑडिटोरियम था उसको क्या नाम दिया गया उनके नाम से, तो ये पूरा नाम ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. तो ये बड़ी बात है उनके लिए कि उनके नाम से कोई तेहरान ऑडिटोरियम का नाम ऐसा दिया गया. कन्फर्ड मीन्स गिवन और यूजुअली एन अवार्ड और डिग्री के रिलेटेड, एंड coveted means much desired, wishful. National awards like Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred to him. तो जो नेशनल अवार्ड से बड़े बड़े पद्मश्री हो या पद्म भूषण जो उनको मिला. In 2001, in the year of 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award. 2001 में वो जो बिस्मिल्लाह खान को जो अवार्ड इंडिया का सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड जो माना जाता है, जो भारत रत्न है, वो भी उनको मिला. ओके, सबसे बड़ा भारत रत्न, उसके नीचे पद्म विभूषण, उसके नीचे पद्म भूषण और उसके नीचे पद्मश्री. ये 4 प्रेस्टिजियस अवार्ड इंडिया में माने जाते हैं. विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. And with the coveted, जब उनको ये उनकी विश थी, एक डिज़ायर थी, अवार्ड रेस्टिंग इन हिज चेस्ट, जब उन्होंने जब उनको अवार्ड मिला था, जब उनके चेस्ट से लगा के वो बोले, और उनकी एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, और उनकी आइज़ में वो हैप्पीनेस दिखाई दे रही थी उस दिन जो रेयर थी, कभी कभी निकलने वाली हैप्पीनेस थी. और उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, मैं बस वही कहना चाहता हूँ, दैट टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, आप अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ. दिस इज़ हिंदुस्तान ट्रेडिशन, रिचेस्ट ट्रेडिशन, वो हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है. इवन द वेस्ट, नाउ वेस्ट जो कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री है, इज़ नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूज़िक, वो आज हमारा म्यूज़िक सीखने यहाँ आते हैं. In spite of having travelled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is excessively fond of Banaras and Dumraon, and they remain for him the most wonderful towns of the world. And in spite of having travelled, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया था वर्ल्ड में, बट खान साहिब is fondly called, बस वो जनरली कहाँ जाते थे, बनारस एंड डुमराव. They remain for him the most wonderful towns of the world. वो वर्ल्ड के मोस्ट वंडरफुल टाउन माने जाते हैं उनके लिए. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA. Okay, then a student of his, एक स्टूडेंट, उन्होंने क्या बोला था, once wanted him, जस्ट वो ये चाहता था to head a Shehnai school in the USA, कि आप USA में एक शहनाई स्कूल ओपन करो. And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replacing the temples there. And वो भी और भी बोला, the student promised, और स्टूडेंट ने प्रॉमिस भी किया था, that to recreate the atmosphere बनारस का जो एटमोसफियर था हम वहाँ रिक्रिएट करेंगे by replacing the temples there, वहाँ टेम्पल्स लगा के. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. खान साहिब ने एक ही क्वेश्चन उसे पूछा कि अगर तू टेम्पल्स यहाँ से रिप्लेस कर सकता है, बस वो एक चीज़ कर दे, रिवर गंगा को यहाँ से वहाँ अगर वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकता है तो. लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, दैट इज़ वाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू बी हिंदुस्तान. एंड तब जब उनके सामने वाले स्टूडेंट के पास कोई आंसर नहीं था, दैन ही रिमेंबर्ड, उनको याद है, और कब बोला, दैट इज़ वाई, बस उस लिए ही मैं whenever I am in foreign country, जब मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ, I keep yearning to see हिंदुस्तान, तो मुझे ऑलवेज हिंदुस्तान देखने की ख्वाहिश रहती है.
वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तब भी मुझे जस्ट बनारस एंड वो होली गंगा जहाँ मैं म्यूज़िक सीखता था, जहाँ मैंने इन्वेंट किया सब कुछ, वो मुझे चाहिए. एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ दमरा. और जब मैं बनारस में होता हूँ, वाइल आई एम इन बनारस, आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ दमरा, तब मैं एक जो डुमरावन का जो मत्था है उसे मिस करता हूँ, वो मुझे याद आता है. एक पार्ट है शेखर गुप्ता. What is partition happened? When partition happened, did you and your family think of moving to Pakistan? खान साहब को एक क्वेश्चन पूछा था किसने, शेखर गुप्ता ने. और ये कहाँ से लिया गया है? रीडर्स डाइजेस्ट में से एक बुक है, अक्टूबर 2005 में उनसे पूछा गया था. तब पूछा कि व्हेन पार्टीशन हैपन, जब पार्टीशन हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान का, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग इन पाकिस्तान, तब आपकी फैमिली में पाकिस्तान जाने के लिए नहीं सोचा था कि पाकिस्तान चले जाए बिकॉज ऑफ यूर मुस्लिम? बिस्मिल्लाह खान ने आंसर दिया था, गॉड फॉरबिड, मीन्स भगवान माफ़ करे मुझे, लीव बनारस मीन्स बनारस को छोड़ना, नेवर, कभी नहीं हो सकता, मैं बनारस को कभी नहीं छोड़ूंगा. आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया था. एंड आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान. आई क्रॉस द बॉर्डर, जस्ट मैंने बॉर्डर क्रॉस की थी. क्यों? जस्ट टू से आई हैव बीन पाकिस्तान, जस्ट ये बोलने के लिए मैं पाकिस्तान गया हूँ, बाकी मैं नहीं गया. आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, और मैं वहाँ 1 घंटे के लिए रहा. आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस. आई हैड अ गुड लाफ. एंड आई सेड नमस्कार टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी थे उनको मैंने बोला नमस्कार, एंड सलाम अलैकुम टू इंडियंस, और इंडियन को मैं सलाम वालेकुम बोलता हूँ. आई हैड अ गुड लाफ, और मैं हंसने लगा. वन मोर वर्ड, डिवोटी मीन्स बिलीविंग स्ट्रांगली, किसी को जो स्ट्रांगली इन अ रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉज एंड फ्लोइंग टू प्रैक्टिस, कोई एक रिलीजन को मानना. ओके, लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India. और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ की हम देखें, then it is a perfect example of the rich cultural heritage. इंडिया का rich and cultural heritage एक अच्छा एग्जाम्पल है. One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. And one that effortlessly accept, हमें वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, सबको ही एक्सेप्ट करेगा. दैट अ डिवोट मुस्लिम, एक ऐसा मुस्लिम जो सब कुछ मुस्लिम रिलीजन में फुल ऑफ बिलीव जो रखता है, वैसा मुस्लिम लाइक हिम, उनके जैसा, और नेचुरली प्ले, वो नेचुरली प्ले करता था शहनाई एवरी मॉर्निंग. कहाँ पे? इन द काशी विश्वनाथ टेम्पल पे बना रास्ता. ऐसा मुस्लिम जो था. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006. उनका डेथ कब हुआ था? 21 अगस्त 2006 में, एट द एज ऑफ 90 की एज में, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बहुत लंबी बीमारी के बाद. ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग. एंड स्टेट फ्यूनरल मीन्स गवर्नमेंट ने उनका फ्यूनरल जैसा होता है कोई भारत रत्न का, वैसे किया. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, एक दिन का जो नेशनल मॉर्निंग शो होता है वो डिक्लेयर किया. तो एक बड़ी हस्ती जिनका नाम था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, द वंडरफुल क्रिएशन अबाउट हिम. ओके, सो आवर चैप्टर इज completed here. Now that you have to write your exercise in your notebook, and I hope everyone will do it. Okay, first क्या है, thinking about the text, tick the right answer, then find the words in the text which show Ustad Bismillah Khan's feeling about the items listed below, then mark tick in the correct column. Discuss your answer in the class, like teaching children music, positive negative neutral क्या है, the film word, वो आपको लिखना है. then answer the following question in 30 to 40 words. तो ये लॉन्ग आंसर 7 questions are there that you have to write its answer. then thinking about language, then blank है, टिक द राइट आंसर टिक करना है. 2 options are here. then dictionary work means vocabulary based work. Okay, so speaking that you haven't write. Okay.
So everything that I tell you. Okay. So thank you for watching.